Good morning, dear students. Hello, this is Neha, your course teacher, and our course title is Principles of Agronomy, and our course number is EAS 5111. So, yes, so today's our topic is tillage influence on physical properties of soil. Okay, so in our previous lecture we had discussed about the tillage, some characteristics of tillage as well as importance of tillage and the basic features and also the tilth, what is tilth, the definitions of tilth and the types of tilth. Okay, so in this lecture we will discuss about the tillage influences on physical properties of soil, how they influence our soil structure, soil texture also. Okay, so let us see. Yes, so tillage has considerable influence on soil physical properties like pores, space, structure, bulk density, water content and colors. Okay, so these are physical properties of soil जो हमें फिजिकली हम डिफाइन कर सकते हैं. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड द physical property. Okay, so these effect of tillage lost for about a month. So tillage practices have therefore greatest effect on seed germination, seedling emergence and stand establishment. ठीक है, so these are affected by this phenomena or these factors are affected by tillage. Which factors? So seed germinations, seedlings emergence and establishment of roots, we can say that. Okay, basically we can say that the establishment of root as well as plant. ठीक है, कैसे स्टेबल होता है, कैसे स्टैंड आउट होता है वो, तो इट्स डिपेंड ऑन द टीलेज. ओके, so we have six major physical properties for which is influenced by tillage. So first one is pore space, then soil structure, bulk density, soil colors, soil temperature and soil water. Okay, so these are physical properties. Okay, so we will discuss all of this and we take first one, which is pore space. Okay, so let us see what is pore space. So soil are made up of particles of different size. Okay, so different size particle like sand, silt and clay. Okay, so these are the particle size of soil. Okay, sand का size, clay का soil जो है, ये सारे जो साइज हैं वो डिफर करते हैं एक दूसरे से. ठीक है, सो एयर फिल्ड स्पेसेस बिटवीन दिस पार्टिकल्स कंस्टिट्यूएंट पोर स्पेस. ठीक है, तो इन जो आपस में जो बाइंड होते हैं, ठीक है, अलग अलग पार्टिकल से मिलके सॉइल एक ठोस कॉम्पैक्ट मटेरियल बनता है. ठीक है, जिसमें सिल्ट, क्ले और सैंड की जो कॉम्बिनेशन होती है वो इंक्लूड्स होती है. ठीक है, तो इन कॉम्बिनेशन के बीच में, ठीक है, इनके बीच में पोर स्पेस होते हैं जहाँ पे एयर या वाटर फील होते हैं. ठीक है, तो उसको हम कहते हैं पोर स्पेस. ठीक है, सो व्हेन अ फील्ड इज प्लाउड द सॉइल पार्टिकल्स आर लूजली स्टैक्ड इन अ रैंडम मैनर एंड पोर स्पेस इज इंक्रीज्ड. ठीक है, तो जब हम प्लॉइंग करते हैं, ठीक है, प्लॉइंग करना मतलब क्या होता है, लूजिंग करना, सॉइल को लूज करना. ठीक है, उलट पलट करना. क्यों उलट पलट करना? ताकि हमारी जो सॉइल है उसकी फेरेबिलिटी बनी रहे. ठीक है, उसका भुरभुरापन बना रहे. उसके भुरभुरे बने रहने का मतलब क्या होता है, उसकी पोर स्पेस जो है वो क्या है, अच्छे से फिक्स्ड हो, पोर स्पेस जो है बनी रहे. ठीक है, जिससे जो हमारा सॉइल में अच्छे से एयरेशन होता रहे, वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी उसकी अच्छी रहे. ठीक है, इस वजह से हम प्लॉइंग करते हैं. प्लॉइंग का मतलब ही एक इनडायरेक्ट वे में हम कह सकते हैं कि टीलेज ऑपरेशन करते हैं हम, या टीलेज प्रैक्टिसेस करते हैं. ओके, सो when the soil is in a good till, the capillary and non-capillary pores would be roughly equal. Okay, so this facilitates free movement of air and moisture in the soil and increase infiltration rate. ठीक है, तो जब हम प्लॉइंग करते हैं तो ये जो मूवमेंट होता है, किसका मूवमेंट होता है,
एयर या वाटर का मूवमेंट होता है, ठीक है, इनफिल्ट्रेशन जो रेट होती है, ठीक है। तो जो ये वाटर का जो मूवमेंट होता है वो बेसिकली टू मेजर टाइप से उनका मूवमेंट होता है, ठीक है। कैपिलरी वाटर जो होता है और एक होता है हाइग्रोस्कोपिक वाटर, ठीक है। तो कैपिलरी वाटर क्या होता है, द वर्टिकल मूवमेंट ऑफ द वाटर टूवर्ड्स द अंडरग्राउंड ऑफ द सॉइल, इट इज कॉल्ड द कैपिलरी वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। And the horizontal movement of the soil towards this, toward the surface or subsurface of the soil, that is called the hygroscopic movement or as well as hygroscopic distribution of water. Okay, so these are the increasing this factor is increase the infiltration rate. Okay, you got this? Okay, so the second one is soil structure. So this is a very most important factor which is influenced by the tillage operations. So soil with crumbly and granular क्लोथ्स इज कंसीडर्ड एज सॉइल विद गुड स्ट्रक्चर, ठीक है। बहुत ही अच्छी क्रम्बल्स जो सॉइल होगी दैट इज कॉल्ड द गुड स्ट्रक्चर सॉइल, ठीक है। इट्स डिपेंड ऑन दी प्लॉइंग, हाउ वी प्लाउ एंड हाउ वी कैन यूज दैट implements in our field. That's totally depend on the tillage operation practices, and it's all depend on the growth growth and plant development. Okay, so when the soil is subjected to tillage at optimum moisture, crumb structure is developed so that loss of soil by erosion is greatly reduced. Rainwater is held in the large pores between the aggregates and also in the micropore पोर्स ऑफ एग्रीगेट्स, ठीक है। सो अलग अलग एग्रीगेट्स मतलब क्या होता है, जो सॉइल है हमारे वो अलग अलग पार्टिकल से मिलके बना है बेसिकली, ठीक है। जिसमें ये जो मेजरली जो पार्टिकल्स इंक्लूडेड हैं वो सैंड, सिल्ट और क्ले के हैं, ठीक है। तो ये सारे पार्टिकल जब ज्वाइंट हो जाते हैं, दे ऑल ज्वाइंट टुगेदर, दैट इज कॉल्ड द सॉइल एग्रीगेट्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है वो पोरोसिटी को या पोर स्पेस को बढ़ाती है। तो ये डिपेंड करता है कि किस सारे सॉइल स्ट्रक्चर जो है, सैंड का, सिल्ट का और क्ले का, सबका पार्टिकल साइज क्या होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है। तो उनके पार्टिकल साइज के अकॉर्डिंगली उनके आपस में क्या होती है, पोरोसिटी होती है। किसी की ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है, किसी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होती है, जैसे क्ले सॉइल की बहुत अच्छी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, सैंडी लोम सॉइल की अच्छी होती है, बट सैंडी सॉइल की क्या होती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है, ठीक है। वो बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है, जितना जल्दी वो सोख लेता है उतना जल्दी ड्राई हो जाता है, मतलब ज़्यादा देर तक ये मॉइस्चर को क्या बताए बनाए रखने में केपेबल नहीं होता, ठीक है। तो ये टोटली किस पे डिपेंड करते हैं, सॉइल के स्ट्रक्चर पे, ठीक है। इस वजह से हमें सॉइल के स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है, हम क्या करते हैं, टीलेज ऑपरेशन करते हैं। तो बेसिकली जो टीलेज ऑपरेशन का रिलेशन है वो किस पे डिपेंड करता है, हमारे प्लॉइंग पे, ठीक है। जो हम अलग अलग इम्प्लीमेंट, देसी प्लाऊ हो गया, एमबी प्लाऊ या कल्टीवेटर का हम जो यूज़ करते हैं अपने फील्ड पे हल जोतने के लिए, ठीक है। तो वो क्या होता है, टीलेज ऑपरेशन कहलाता है। Again, the smaller aggregates may clog the soil pores and larger ones may have large pores spaced between them and affect the development of rootlets of the young seedlings, ठीक है। तो पोर स्पेस क्या होता है, बहुत कॉम्पैक्ट सॉइल होने से क्या होता है, एरेशन अच्छे से नहीं हो पाता। एरेशन मतलब अपटेक इनटेक नहीं हो पाता है किसका, एयर्स का, ठीक है। तो जिसकी वजह से अपटेक, ये सारी चीज़ें देखिए एक दूसरे से इंटर रिलेट है, ठीक है, इंटर कनेक्टेड है, कि जब अपटेक नहीं हो पाएगा अच्छे से, आउटलेट ही नहीं होगा, इनलेट ही नहीं होगा, सॉइल में स्पेस ही नहीं होगा, तो क्या होगा, एयर और वाटर के लिए जगह ही नहीं होगा, तो क्या होगा, कॉम्पैक्ट हो जाएगी सॉइल, ठीक है। तो जब ऐसी सॉइल होगी जो कॉम्पैक्ट होगी, तो जो हमारे प्लांट है, ठीक है, या जो हमारे सीडलिंग है, उनको स्पेस नहीं मिलेगा, है ना। तो स्पेस नहीं मिलेगा तो ऑब्वियस है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रुक जाएगा हमारे प्लांट का, ठीक है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, सॉइल स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करते हैं ताकि हमारे सॉइल स्ट्रक्चर में या सॉइल में क्या है, प्रॉपर एरेशन होते रहे, प्रॉपर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन होते रहे, ठीक है। Then soil structure is destroyed when tillage is carried out inappropriate soil moisture,
ठीक है, तो मैंने जो भी समझाया वो इसे वर्ड टू वर्ड यहाँ पे मेंशन करा हुआ है. ओके, एंड द नेक्स्ट इज bulk density. Okay, so bulk density is a very important factor. So we can say that bulk density, what is bulk density? So bulk density is an indicator of soil compaction. ठीक है, सो सॉइल कॉम्पैक्शन मतलब वो इंडिकेट करता है हाउ कॉम्पैक्ट दैट पर्टिकुलर सॉइल और पर्टिकुलर एरिया, इन पर्टिकुलर एरिया. Okay, so it's depend on the, so this is the calculation. So it is calculated as the dry weight of soil divided by its volume. Okay, so basically we can say that this volume includes the volume of pores among soil particles. Okay, so that is whole call that, bulk density. Okay, so when the soil is loosened, the soil volume increase without any effect on weight. Okay, so therefore bulk density of tilled soil is less than the untilled soil. मतलब जो बल्क डेंसिटी होती है प्लॉइंग करे हुए या टीलेज ऑपरेशन या टीलेज प्रैक्टिसेस किए हुए सॉइल का कम होता है एज कंपेयर टू नॉन टिल्ड सॉइल. ठीक है, या अनटिल्ड सॉइल. सो हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि सॉइल बल्क डेंसिटी जो है वो क्या है, द टोटल सॉइल वॉल्यूम इज कंबाइंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड एंड pores. Okay, so that which may contain that some air, some water, it's depend on the soil. Okay, and yes, this is also known as dry bulk density. Okay, so sometime question has been asked from that name of dry bulk density. Okay, so there is no need to be confused, both are very same, bulk density and dry bulk density, isn't it? Okay, then second factor is soil color. So organic matter is mainly responsible for the dark brown to dark gray color of the soil. Okay, so this increases oxidation and decomposition resulting in fading of the color. ठीक है, सो बेसिकली हम देखते हैं जहाँ पे हम मैन्यूर डालते हैं या ऑर्गेनिक मैटर डालते हैं, जैसे काऊ डंक वगैरह हो गया. ठीक है, गोबर की खाद मीन्स दैट. सो काऊ डंक हो गया या कोई मैन्यूर है, फार्म यार्ड मैन्यूर है, या डोमेस्टिक वेस्टेज जो होते हैं उनसे जो प्रिपेयर किया हुआ मैन्यूर है, हम अगर वहाँ पे डालते हैं तो हमारी जो डिपेंड करता है कि हमारे सॉइल का क्या है, कलर जो है वो भी डिपेंड करता है, चेंज हो जाता है. ठीक है, तो क्या होता है, कलर भी होता है सॉइल का, वो भी क्या होता है, इंक्रीज टीलेज करने से क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है और डिकम्पोजिशन रेट बढ़ता है. सपोज हमने कहीं अपने फील्ड पे काऊ डंग स्प्रेड आउट करा हुआ है. ठीक है, मतलब हमने क्या किया है, मैन्योर दिया हुआ है अपने फील्ड पे. ठीक है, तो मैन्योर हमने प्रोवाइड किया है, बट मैन्योर पे अवेलेबल जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारे फील्ड में कैसे, हमारे सॉइल को कैसे मिलेगा, जिससे प्लांट का ग्रोथ हो, या हमारा जो प्लांट है वो उसे कैसे अपटेक करेगा, थ्रू दी रूट. ठीक है, या सॉइल कैसे अपटेक करेगा थ्रू दी वाटर स्प्रेड आउट या वाटर इरिगेशन वाटर के थ्रू वो क्या करेगा, उसको अपटेक करेगा. तो ये कैसे अपटेक करेगा कि अच्छे से ऑक्सीडेशन हो, डिकम्पोजिशन हो, ताकि हम प्लॉइंग करें, टीलेज करें. उससे क्या होगा, टीलेज करने से क्या होगा, स्पेस जो है वो मेंटेन होगा, पोरोसिटी, पोर्स स्पेस अवेलेबल होगा वहाँ पे, है ना, एयरेशन अच्छे से होगा, लूज होगी सॉइल, मतलब वेरिएबल होगी, भुरभुरी होगी सॉइल, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, ऑक्सीडेशन अच्छे से होगा. जब ऑक्सीडेशन अच्छे से हो रहा है इसका मतलब क्या होता है कि जो भी वहाँ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, उनका ऑक्सीडेशन अच्छे से हो रहा है, रेस्पिरेशन अच्छे से हो रहा है. तो रेस्पिरेशन के थ्रू ही हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करते हैं, डिकम्पोजिशन का प्रोसेस चलता है किसी भी चीज़ का. ठीक है, तो जब हम मैन्योर को स्प्रेड करते हैं या अपने फील्ड पे प्रोवाइड करते हैं तो डिकम्पोजिशन रेट के कारण ही, ठीक है, हमारे जो उसमें अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सॉइल को और प्लांट्स को प्रोवाइड होते हैं. ठीक है, तो ये डिपेंड करता है सॉइल के कलर पे भी. तो टीलेज जो है इससे भी इन्फ्लुएंस होता है. ठीक है, एंड देन soil temperature. So tillage creates soil temperatures optimum for seed germination, which is essential for the, temperature is a very very important factor for the seed germination, because every crop has their own
temperature requirement for the seed germination. So this is a very important factor, and this is a very primary importance factor. Okay, so remember that this is very primary important factor for the our growth of the crop, क्योंकि जब तक हमारा जर्मिनेशन ही नहीं होगा, सीड में अंकुरण ही नहीं होगा, तो पौधा ही तैयार नहीं होगा, है ना, या रूट डेवलपमेंट ही नहीं होगा, या शूट डेवलपमेंट ही नहीं होगा. तो दिस इज अ वेरी प्रिमिटिव इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर द टिलेज एंड विच इज इन्फ्लुएंस फॉर द फ्रॉम दिस tillage operations. Okay, so tillage loosen the soil surface, resulting in increasing of thermal conductivity and heat capacity. Okay, so these are the factors. Then again we reach soil water. So let us see what is soil water. So basically soil water is a majorly two type, which is capillary and hygroscopic, as earlier I told you. Okay, so let us see. So tillage improves soil water in a different way. So the amount of available water depends on the soil porosity, soil depth and random roughness. Okay, so it's all depend on the soil water for the in distribution of soil. ठीक है, जो भी soil में हम irrigation water provide करते हैं, ठीक है, तो वो depend करती है depth पे. अब डेप्थ कैसे होगा, जब हम टिलेज करेंगे, लूजन करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंगली वो क्या होगा, होल्ड करेगा वाटर को. अदरवाइज अगर कॉम्पैक्ट है, हमारी सॉइल में पोरोसिटी नहीं है, ठीक है, एयरेशन के लिए एक रिक्वायर्ड स्पेस नहीं है, तो क्या होगी, वाटर लॉगिंग कंडीशन हो जाएगी वहाँ पे, है ना. और जब वाटर लॉगिंग कंडीशन हो जाएगी तो या तो हमें उसे ड्रेन करना पड़ेगा, या वो जो वाटर है वो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, एवेपोरेशन हो जाएगा. ठीक है, तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो हमारे टिलेज जो हैं उस पर डिपेंड है, हम कह सकते हैं, या उन टिलेज के नहीं होने पे या होने पे इन्फ्लुएंस होते हैं. ठीक है, so all these characters are increased by tillage. Roughness is a measure of micro elevation and depression caused by furrows and ridges, clouds and depressions. And what is that? Okay, that term is very new for you all, that which is furrows and ridge. Okay, so हम जो मेड़ बनाते हैं, ठीक है, व्हाट इज फरोज एंड रिच, जो हम क्या करते हैं, ऊपर जो मट्टी चढ़ा के जिसके ऊपर हम पौधा लगाते हैं, दैट कुड बी कॉल फरोज. ठीक है, और जो बीच के जो स्पेसेस, दो फरो के बीच के जो स्पेसेस होते हैं, दैट इज कॉल्ड what, ridge. Okay, so this is very important as we are agriculture student, so that should be know that what is furrows and basic terminologies like furrows and ridges, that is very important terminology for in our agriculture perspective. Okay, then random roughness indicates elevation and depression of the field without a pattern as it happens after plowing. So it influences the volume of surface depression, storage of temporary storage of rainfall. So tillage also increases rate of infiltration, water holding capacity and hydraulic conductivity. ठीक है, सो बेसिकली हमें बस ये पता होना चाहिए, सॉइल वाटर जो है वो अलग अलग तरीके से इनफिल्ट्रेट होता है. ठीक है, ये पर्कुलेशन होता है. हम आगे अगर आपका वाटर मैनेजमेंट का कोर्स होगा तो आप उसे ये जो सारे बेसिक टर्मिनोलॉजीज है वाटर के बारे में ये हम पढ़ेंगे. बट हमें अभी इतना पता होना चाहिए कि जो मूवमेंट होता है, ठीक है, तो सॉइल वाटर जो भी वाटर हम इरिगेशन के थ्रू हमारे प्लांट को देते हैं, उनका एक अलग तरीके से मूवमेंट होता है. हाइग्रोस्कोपिक वाटर हम कहते हैं जब हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है, कैपिलरी वाटर हम जब कहते हैं जब वर्टिकल मूवमेंट होता है, इजंट इट. तो ये एक बेसिक टर्मिनोलॉजीज हमने दिया हुआ है. ठीक है, हमारे एक साइंटिफिक कल्टीवेशन या साइंटिफिक रीज़न है हमारे, या हम कह सकते हैं समझने के लिए एक हमने एक टेक्नोलॉजी के थ्रू एक बेसिक टर्म्स दिया हुआ है. ठीक है, तो ये डिपेंड करता है टीलेज पे कि अगर हमने सॉइल को लूज़ करा तो उसका क्या होगा, वो कॉम्पैक्ट नहीं होगा. हमारी सॉइल जो है उसको होल्ड करने की कैपेसिटी जो होगी उसकी अच्छी होगी. ठीक है, तो दीज आर द फैक्टर लाइक पोरोसिटी, बल्क डेंसिटी, सॉइल वाटर, सॉइल कलर, soil structure. Okay, so they are influenced by the tillage, we can say that. And
फैक्टर अफेक्टिंग भी हम कह सकते हैं, ठीक है। तो समटाइम क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड दैट फ्रॉम दिस टॉपिक लाइक एज नेम ऑफ फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ टीलेज, सो बोथ आर सेम, ठीक है। आपको लिखना सेम है, नेम चेंज करके कभी भी आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप मेंशन सेम चीज करेंगे, ओके। सो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे नया चैप्टर, ठीक है। सो आई होप यू ऑल गॉट द सेंस एंड थैंक यू फॉर पेइंग अटेंशन एंड लिसनिंग वेरी केयरफुली। थैंक यू वेरी मच। टिल देन बी सेफ, टेक केयर, थैंक यू।